Darul Pretoria, Darul Pretoria, Darul Pretoria, Darul Pretoria. कितना हसीनो दिलरुबा दारुल प्रिटोरिया है मरकज़े इल्मे खुदा दारुल प्रिटोरिया, दारुल प्रिटोरिया, दारुल प्रिटोरिया। और बेशक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र करम और औलिया का फैज़ान है कि इस दारुल में तलबा, चूँकि इंग्लिश तो यहाँ की ज़ुबान है, इसके साथ साथ हमारे मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए असातिज़ा जामिअतुल अज़हर से वल्हम्दुलिल्लाह इनको अरबी भी सिखाते हैं, जिससे ये बाअहसन अरबी बोलना, पढ़ना और समझना जानते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि अगर देखा जाए कि अरबी के बाद जिस ज़ुबान ने इस्लाम को तक़वियत दी वो फ़ारसी ज़ुबान है, और फ़ारसी के बाद अगर देखा जाए किसी ज़ुबान ने इस्लाम को तक़वियत दी, इस्लाम की नश्र व अशात में काम किया, तो बेशक वो उर्दू ज़ुबान है। इसलिए यहाँ उर्दू की तालीम भी दी जाती है कि जिससे ये तलबा इस काबिल हो सकें कि जो ज़ख़ीरा इल्म उर्दू में जो मुंतकिल किया गया उसको पढ़ सकें, समझ सकें और उसे फिर अपनी ज़ुबान में मज़ीद फैला सकें। तो हमारे मेहमान खुसूसी का इंशाअल्लाह ज़वजल तारुफ़ हुज़ूर किबला मुफ्ती अब्दुल नबी हुमैदी साहब करवाएंगे। और चूँकि वो उनके बहुत करीबी हैं, लेकिन इससे पहले दारुल की तरफ से अपने मेहमानान गरामी का खैर मक़दम करने के लिए मैं दावत देता हूँ, इल्तिमास करता हूँ डिप्टी प्रिंसिपल हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल हज़ारवी साहिब से कि वो माइक पर आएँ और मेहमानान गिरामी का खैर मक़दम। Our esteemed guest, His Eminence Muhtaram al-Maqam Hazrat Allama Maulana Haji Imran Sahab Attari, as you hear, is the Nigran of the Shura, which means he is the head of the consultative board of Dawat-e-Islami on an international level. So he is with us, and indeed it is our good fortune that he is here with us, and from his very limited and tight schedule he's allowed us time, and we are indeed grateful and thankful, and we sincerely thank him, thank the members of Dawat-e-Islami, thank the rest of the people, due protocol observed. I want to say to them, Jazakumullah. And as it is traditional and as it is a way and a manner of Darul Pretoria, that we show our welcome not only in words, but we express our welcome in a unique form, which is unique to Darul Pretoria in this part of the region. I want to call upon the principal of the Darul, His Eminence Ustadul Ulama Pir Tariqat Qibla Mufti Muhammad Akbar Hazarvi Sahab, to express our welcome on behalf of everyone that is present here. And I'm going to call upon Qibla Mufti Sahab to welcome His Eminence Muhtaram al-Maqam Hazrat Allama Maulana Haji Imran Attari Sahab. It is purely befitting that we extend a welcome, very cordial, to a very prominent figure of Dawat-e-Islami, not only in South Africa, but beyond the borders of South Africa, a man of international repute, a person who shoulders tremendous responsibilities, particularly from the Dini front. His Eminence Hazrat Allama Qibla Mufti Abdul Nabi Sahab Hamidi is going to be welcomed, and I'm going to call upon Qari Nur Alam Sahab to kindly do the honors on behalf of Darul Pretoria in welcoming Mufti Sahab to this function here today. A person who has indeed very, very active role and whose responsibility is beyond limits, beyond spans, beyond boundaries, beyond the length and breadth of South Africa,
is a man who has indeed dedicated his life to Dawat-e-Islami, and who is often referred to, not only referred to, but indeed the essence of Amarat. He is the Amir of Dawat-e-Islami of this region. And I want to call upon Muhtaram Janab Al-Haj Muhammad Aslam Faizu Sahab to kindly come forward. And I'm going to call upon our Sheikh Jamal to kindly do the honors on behalf of Darul Uloom in welcoming and garlanding our brother Muhammad Aslam Faizu Sahab, inshallah. And we also have a visiting personality, also deeply entrenched, deeply rooted in the activities of Dawat-e-Islami, who's traveled all the way from Dubai, and Muhtaram Janab Haji Nur Muhammad Sahab, who's traveled from Dubai. He will also be welcomed and he will be garlanded here. I'm going to call upon Maulana Osman Suleri to do the honors on behalf of Darul Uloom. Alhamdulillah, there are many other members of Dawat-e-Islami that are present here today, and to them we say, due protocol observed. Alhamdulillah, your presence means tremendous to us. You're awesome in being here with us today and in sharing these moments with us. And to hand back to the program director, we are going to now move on with the program. So I'm going to call upon Maulana Osman to take the program further. Jazakumullah. अब मैं दावत देता हूँ मुहतरमुल मुकाम मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहिब को कि मेहरबानी फरमा कर वो माइक पर आएँ और हमारे खुसूसी मेहमान का जो है वो तारुफ करवाएं. Beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said that a person who sends 1000 times daily durood or salutations or salawat upon me, he will not die till he sees his place in Jannah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatum wa salamun alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Our beloved guest of honor, His Eminence, Hazrat Al-Haj Maulana Muhammad Imran Attari Sallamahul Bari, Nigran of Markazi Majlis Shura of Dawat Islami, Fadilatul Shaykh Pir Tariqat Hazrat Allama Maulana Mufti Muhammad Akbar Hazarvi Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah, Deputy Principal of Darul Uloom Pretoria Hazrat Allama Maulana Hafiz Muhammad Ismail Hazarvi Sahib, and all the teachers of Darul Uloom Pretoria and beloved students of this institution. To come here and visit Darul Uloom Pretoria was the wish of His Eminence, and staying with them, spending time with them, I've learned that he has great love for Ilm-e-Deen and for the students who are learning Ilm-e-Deen. And this comes from his Piro Murshid, Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Hazrat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razvi Ziyai Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah, who always says, हमको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है. O Attar, we love all Sunni ulama, and inshallah we will be successful in both the worlds. His Eminence
was a businessman, comes from a successful business family. But when he got close to Amir Ahl Sunnat, and because of the motivation of Amir Ahl Sunnat, he started studying formally and informally. And Alhamdulillah, he completed his Dars-e Nizami and he became Alim-e-Deen. पढ़ा तो है ना Jazakallah. Well, Hazrat has put a disclaimer to what I have said, but it is in my knowledge that he has studied. Maybe he did not complete, but he did study in Darul Uloom Amjadiyya and privately from ulama as well. And Alhamdulillah, because of the love that Amir Ahl Sunnat has for Ilm-e-Deen, he has put much emphasis on establishing Darul Ulooms. In Pakistan and outside Pakistan, Dawat Islami is running almost 400 Darul Ulooms, fully fledged Darul Ulooms, and more or less 25,000 students are studying Ilm-e-Deen in those Darul Ulooms. So this is the commitment of organization towards spreading Ilm-e-Deen, and then to do the research and write books and translations and many other works. Amir Ahl Sunnat established Al-Madinatul Ilmiya, which is the organization or the majlis of researchers, that ulama who do research on many topics, and Darul Ifta Ahl Sunnat in many cities, and the training of Ifta and etc. All that is done because of the love of Ilm-e-Deen. And Alhamdulillah, since His Eminence has great experience dealing with the issues of Darul Ulooms, students, teachers, he has great first-hand experience. They have vision. I mean, running so many institutions, 25,000 students would be graduating as ulama, and at the moment the biggest number of ulama from any Sunni institutions are being graduated from the Darul Ulooms of Dawat Islami. That goes into many hundreds every year. The idea Alhamdulillah, this year 364 students are doing Dawra Hadith, and more or less. So that is actually a great achievement. The idea to come and meet and have dialogue directly with students is to share his experience. We would actually like if students of Darul Uloom Pretoria ask questions from His Eminence pertaining to your future when you qualify as an alim, how to develop organizational skills and be successful in the area and society you are working, how to develop your leadership skills so you can work as a leader and as a revolutionary within your country, within your city, within your society, and many other issues. If you have questions regarding Dawat Islami, regarding Amir Ahl Sunnat, anything that bothers you maybe about Dawat Islami, or you have any confusion regarding the work of Dawat Islami or the movement, or there's any misconception that you're sitting with, today we have
the head of Dawat Islami sitting with us, and you can ask him directly instead of hearing from here and there. As far as the introduction is concerned, he has stopped me not to go into introduction, and in fact Hazrat Maulana Hafiz Muhammad Ismail Hazarvi Damat Barakatum al-Qudsiyah has given the introduction already. So without any much and further delay, we will ask His Eminence to say a few words, and then inshallah Azza wa Jal, you would be able to ask questions. You will be given a mic, give your name, where you come from, in which daraja, or in which class you are in Darul Uloom Pretoria. This would be recorded, and inshallah it would play on Madani channel as well, and through you many other youngsters might get motivation, and they inspired, and they become ulama deen as well. So with that good intention, we will engage in this discussion inshallah azza wa jal. सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा. Beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said that you should decorate your gatherings by reciting durood upon me. Your reciting durood in my favor would be light for you on the day of judgment. Sallu ala al-Habib Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सबसे पहले मैं क़िबला मुफ्ती अकबर हज़ारवी साहब मुद्दाज़िलुल आली का शुक्रिया अदा करता हूँ. First of all, I am thankful to Hazrat Qibla Mufti Akbar Hazarvi Damat Barakatuhum al-Qudsiyah, और तमाम यहाँ के असातिज़ा का भी और आप तमाम तलबा का भी जिन्होंने हमें यहाँ हमारी इज़्ज़त अफजाई की. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. and I am thankful to all the teachers and the students and all of you who have honored us. बहुत मशहूर सी एक बात है, हम पढ़ते रहते हैं, There is a famous saying that we always read, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि नेकी की तौफीक नहीं मिलती उसे मगर जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाए. one cannot get opportunity of doing the good deed unless Allah subhanahu wa ta'ala make it possible for him. कोई नेकी कर ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह उसे नेकी करने की तौफीक अता ना करे. Nobody can do a good deed till Allah subhanahu wa ta'ala gives him tawfiq to do the good deed. इसलिए इंसान से जब भी कोई अच्छा और नेक काम होगा वो अल्लाह की तौफीक से ही होगा. So whenever a man does something good, that would indeed happen because of the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. और हमारी बेबसी इस कदर है कि अल्लाह जब चाहे नेकी की तौफीक दे, जब चाहे छीन ले. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर. And our weakness is such that whenever Allah subhanahu wa ta'ala gives us tawfiq to do the good deed, and whenever He desires, He can take that tawfiq back from us. Allah is powerful over everything. हम मोहताज हैं अल्लाह ताला की रहमत के, उसके करम के, उसके फ़ज़ल के, कि वो हमारा दिल उसके रिज़ा वाले कामों में लगा दे तो ये उसकी रहमत है, वरना लोगों के दिल फिरने में देर नहीं लगती. We are needy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is His fadl, His mercy, that He puts us in kind of works in which there is a pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, people's heart change and very quickly. जिससे अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे, उस पर यह बहुत बड़ी नेमत है, और बंदे को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का शुक्र अदा करता रहे. कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमत और बढ़ा देता है. The one who gets tawfiq to do the good deed, he should thank Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, that if you thank, then ni'mat would be increased. तो कोई भी अच्छा काम कर गुजरे उससे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हाजा मिन फضल रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है. If you manage to do something good, always remember that this is the fadl of Allah Azza wa Jal. हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम पर अपनी रहमत, अपना फजल और बढ़ाए. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala increase His mercy and blessing upon us. वो हमारा दिल मस्जिद में लगाए, कुरान की तिलावत में लगाए, इबादत में लगाए, इल्म दीन में हमारा दिल लगाए, हत्ता कि हम सांस, आखिरी सांस तक उसके दीन की और उसके प्यारे हबीब की सुन्नतों की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहें, और हमारी रूह उसका और उसके हबीब का ज़िक्र करते हुए हमारी जिस्म से जुदा हो जाए. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala give us love for masjid, for ilm deen, for studying ilm deen. And may Allah subhanahu wa ta'ala engage our soul in His love and the love of His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. And when we depart in His love. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया के अहले सुन्नत के बहुत प्यारे दारुल-उलूम प्रिटोरिया में हाजिर हैं, और वहाँ की खूबसूरत सी मस्जिद में ये इज्तिमा रखा गया है, और तलबाए किराम इल्म दीन के साथ कुछ मदनी फूल अर्ज़ करने की सादत हासिल हो रही है. Alhamdulillah, at this time we are in city of Johannesburg, Pretoria, and there is a beautiful Darul Uloom of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Darul Uloom Pretoria. We are seated here amongst the teachers and students, and inshallah we'll try to give some Madani pulse to students. हमारा कॉज, हमारा मकसद, हमारी सोच, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? What should be our cause, our purpose, and how should we approach things? इसके लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ. I tell you a story in this regard. वाक़या है हज़रत सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह के जलीलुल कदर शागिर्द हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का. This is the story of a beloved student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Imam Muhammad radiyallahu ta'ala anhu. इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी प्रैक्टिस ये थी कि ये रात भर किताब का मुताला करते थे. This was his practice, that he used to study books whole night. और इन्होंने अपने पास एक पानी का तश्त रखा हुआ था, पानी का एक बर्तन था, कि जब इन पर नींद का गलबा होता तो वो पानी के छींटे अपनी आंखों पर मार कर नींद उड़ाकर मुताला किया करते थे. He used to keep a pot of water next to him, and when the sleep overpowers him, he would sprinkle that water on his face so he can stay up. अब जो आपसे मोहब्बत करते थे, वो जब इस कदर आपको मुशक्क़त में और इस कदर आपको स्ट्रगल करता देखते, तो वो उनको ये डाउट होता कि कहीं हज़रत बीमार ना हो जाएं, इनकी सेहत को नुकसान ना पहुँचे. तो वो इस मोहब्बत में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह को मशवरा अर्ज़ करते कि हुज़ूर आप इतनी अपने आप को मुशक्क़त में मुब्तला ना करें, कुछ आराम फरमा लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेहत मुतासिर हो जाए. Those who loved him, they would be concerned about his situation, and they would advise him that, Hazrat, by doing this what you are doing, you might get ill, so please you must rest as well. अब ये जो मशवरा था, ये मोहब्बत भरा था, प्यार भरा था, मीठा मीठा मशवरा था.
इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मशवरे को सुनकर कि आप सो जाएं, आराम कर लें, कहीं आपकी तबीयत मुतासिर ना हो जाए, ये मशवरा सुनकर आपने बहुत ही प्यारा जवाब अता फरमाया. This was a beautiful mashwara of the devotees of Hazrat Imam Muhammad. But after hearing this mashwara of resting sometimes during the night, Hazrat Imam Muhammad gave a beautiful answer. आप फरमाते हैं कि लोग सो रहे हैं He says the people are sleeping. और उनको ये उम्मीद है कि अगर हमें कोई शरई मसला पेश आया तो हम जाकर इनसे पूछ लेंगे, यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला से पूछ लेंगे कि अगर कोई हमें मसला पेश आया, हमें मसला दरपेश हुआ तो हम इनसे जाकर पूछ लेंगे. अब अगर ये मेरे पास आए और मैं इनका जवाब ना पा सका तो क्या होगा? वो सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूं, ताकि कल इन्हें कोई मसला पेश आए तो मैं किताब से निकाल के इनको मसला बयान कर सकूं. So, those who are sleeping, the public, they are hoping that when they have a problem, they face any shari difficulty, they will come to me and I will be able to resolve their problem. So if I don't stay up and study and read, how would I be able to help them? ये एक मकसद है. इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अगर मैं कहूँ कि हमें एक मकसद दिया कि जो इल्म दीन हासिल करते हैं इन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और ख्याल रखना चाहिए कि आप दारुल उलूम में पढ़ रहे हैं, आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, आप और हम किताबें पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि उम्मत की रहनुमाई की जा सके. So Imam Muhammad rahmatullah ta'ala gave us a purpose for all of us, that those who are studying in Darul Uloom, becoming ulama, reading books, that you must be able to guide the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई हर मसले का जवाब दे सके. It is not necessary that every alim must be able to answer every question at all times. लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक शख्स किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर अगर तालीम हासिल करता है और कोई जाकर अगर उसको कहता है कि पुलिस मुझे एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख कर दे दें ताकि मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं, और वो कहे कि नहीं, मैं आई एम सॉरी टू कि मैं आपको एप्लीकेशन लिख कर नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं आती, मैं अपनी बात लिख नहीं सकूँगा आप जो लिखना चाहते हैं. तो कहेगा कि फिर क्या? तो एक नॉर्मली तौर पर तालिब इल्म दीन जो कि 8 साल दरस निज़ामी करता है, 7 साल दरस निज़ामी करते हैं और फारिग होते हैं, इनसे एक आम आदमी एक मिनिमम कोई उम्मीद रखता है कि इसकी मिनिमम इतनी उम्मीद होती है कि ये मेरी इस तरह की कुछ मोटी मोटी हाजतें और ज़रूरतें जो शरई मसाइल के तहत हैं वो मुझे पूरी कर देगा. क्योंकि हमसे एक आम आदमी माल की, दौलत की, नौकरी की या इस तरह की चीज़ों की तवक्को नहीं रखता. वो एक तालिब इल्म दीन से जब वो इल्म दीन हासिल करके जब फारिग होते हैं, इनसे तवक्को रखी जाती है और होनी भी चाहिए कि ये मुझे शरीयत का, इस्लाम का दुरुस्त रास्ता चलाएंगे और मेरे कुछ ना कुछ मसाइल ये हल करने की कोशिश करेंगे. Let's take an example, a student who is in college or university and he's studying through English medium, and if someone comes to him and tells him that write a letter for me or an application in English, and he says, no, sorry, I can't do that, then the question arises, what is he studying or what has he studied? Now, when you qualify, you graduate, the public around you, they have expectations. And expectations are that when they have some shari issues, they will be able to come to you and you would be able to resolve their problem or give them answers
on their shari difficulties. तो ये हमसे तवक्कुआत हैं और हमें इन तवक्कुआत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. These are the expectations that public has in us, and we should not overlook these expectations. लोगों की तवक्कुआत को पूरी करने का एक अंदाज मैं आपको आला हज़रत की सीरत से अर्ज़ करता हूँ. To fulfill the expectations of public, I would like to tell you something from the Seerat, the life of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu. आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोग हाफिज़ लिखा करते थे. People used to write Hafiz with the name of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. आपको लेटर आते जिसमें हाफिज़ लिखा होता, हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी, हाफिज़ कुछ भी करके आपके नाम से पहले लोग हाफिज़ लिखते थे. लोगों को ये तवक्को थी, यानी लोगों का ये ज़न था कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ये हाफिज़ हैं. When people used to write letters with all other titles, they will write Hafiz as well, because people had this good presumption that Sayyidi Ala Hazrat, being such a great scholar, he must be Hafiz as well. तो आपने जब देखा कि मुझे लोग हाफिज़ कहते हैं तो आपने अपने हाफिज़ ना लिखने का नहीं बयान किया कि मुझे हाफिज़ ना लिखा करें, बल्कि आपके इरशाद का ये मज़मून मिलता है कि लोग मुझे हाफिज़ लिखते हैं, क्या ही अच्छा है कि मैं हाफिज़ बन जाऊं. So he did not write back to people, don't call me Hafiz. But he decided that people have these expectations and they feel that I'm Hafiz. So why should I not prepare myself and become Hafiz? तो आपने माह रमज़ान में कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया और एक कौल के मुताबिक असर और मगरिब के दरमियान कुरान मजीद पढ़ते और रात को तरावी में सुना देते और एक माह में यानी माह रमज़ान में आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया. So he started learning Hifzul Quran in the month of Ramadan, and according to one narration he would learn between Asr and Maghrib, and what he would learn between Asr and Maghrib he would read that in Taraweeh, and this is how he completed Hifz in 1 month of Ramadan. इसको क्या कहेंगे आप कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से लोगों का जो ज़न था, जो हुस्न ज़न था, जो एक माइंड था इनके मुतालिक, आपने उसको पूरा करने के लिए ख़ुद को तैयार किया और वो काम किया जो लोग मेरे बारे में हुस्न ज़न रखते हैं मैं वो करके दिखाऊं. What we learn from this story, that people had expectations or they had good presumption about him that he is Hafiz. So after seeing and hearing that, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu prepared himself and he became what people were thinking that he is. इसी तरह एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वन मोर एग्जाम्पल. ये है इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत से. So there are all our ideals. इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहिमहुल्लाह ताला, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह. अगर हम तक़लीद में देखते हैं तो इमाम आज़म हमारे इमाम हैं, तरीक़त में देखते हैं तो गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इमाम हैं, और हम अपने मसलक और मज़हब की तरवीज व इशाअत के हवाले से और जिसने हमें हकीकी मायनों में दीन और इस्लाम और हनफियत और कादरियत और इस तरह के जो उलूम है, स्पिरिचुअलिटी है, फ़िक़्ह है, इन तमाम चीज़ों का, इश्क़ रसूल है और बहुत सारी चीज़ें, यानी इस्लाम जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इस उम्मत तक पहुँचाया और आइम्मा मुज्तहिदीन ने पहुँचाया, वो इस्लाम की असल सूरत जिसने हम तक पहुँचाई उसका नाम है इमाम अहमद रज़ा ख़ान इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह. All these personalities that we are discussing are our ideals. Imam Azam Abu Hanifa, Hazur Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, and Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu is the personality that have brought Hanafiyat and Qadiriyat to us, and he made us Ashq Rasul, and he taught us how to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and awliya ikram. इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे. Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu was going somewhere.
किसी ने देखकर कहा कि ये पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं. Someone saw him and he said that this person worships Allah subhanahu wa ta'ala whole night. जबकि उस वक्त इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरी रात इबादत का मामूल ना था. Since at that time this was not the practice of Imam Azam Abu Hanifa to worship whole night. आपने जब लोगों की बात सुनी कि लोग मेरे बारे में ये अच्छा गुमान रखते हैं कि मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करता हूँ, आपने उसी रात से रात भर अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी. And when he came to know that this is the expectations and presumption that people have about me, that I worship Allah subhanahu wa ta'ala whole night, from that day he started worshipping Allah subhanahu wa ta'ala the whole night. यानी अगर हम इनका मुताला करते हैं सीरत का, ख़्वाह इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इस तरह और हमारे बुज़ुर्गान दीन जो गुज़रे हैं, अगर हम इनकी ज़िंदगी का मुताला, क्योंकि जब इंसान को कामयाब होना है ना, जो शख्स कामयाब बनना चाहता है वो कामयाब लोगों की सीरत को पढ़ता है कि ये कैसे कामयाब हुए. If you study the Sirat, the biographies of these personalities, like Aimma Arba and other great people, and if you want to be successful, then you would read the life of successful people, so you can be inspired and you can also become one of them. यानी इनकी ज़िंदगी में वक्त की एक अपनी अहमियत थी, वक्त की कदर करते थे और पूरे के पूरा टाइम, तकरीबन पूरे के पूरा टाइम ये निचोड़ लेते थे अपने लिए, पा लेते थे अपने लिए. इन्होंने अपने सोने के, अपने खाने के, अपने पीने के, अपने दीगर मामला को पूरा शेड्यूल किया हुआ था और हर चीज़ को वो इतना शेड्यूल के साथ चलते थे. अब घड़ियाँ तो उस वक्त होती नहीं थी, इनकी ज़िंदगी खुद एक घड़ी थी, इनकी ज़िंदगी खुद एक नमूना थी. वो बिल्कुल टाइम टू टाइम चलते थे और अपने वक्त को, अपने लम्हात को ज़ाय किए बगैर उन्होंने पढ़ा, मुताला किया, लिखा, बयान किया, तदरीस की, सारे काम किए, इमामत की, बहुत सारे काम किए और करने के बाद वो एक ऐसे स्टेज पर आकर पहुँचे कि हम इनका नाम लेते हैं तो हमारी ज़बान से निकलता है रहमतुल्लाह ताला अलैह. These people had time management skills. They used the time to maximum for their benefits. They had proper timetable and jadwal and schedule made up for themselves. They studied, they taught, they were imams, they were khatibs, they were leaders. They played their roles in many fields. And that is the reason that when we talk about these people, it comes on our tongues, rahmatullahi ta'ala alayh. अपने आप को एक कामयाबी की तरफ लाने के लिए आपको अपना एक कॉज बनाना पड़ेगा, एक मकसद बनाना पड़ेगा. जैसे एक दावत इस्लामी का अपना एक मकसद है और हमारा मदनी मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है. To be successful, you have to make a cause for yourself. Like there is a mission and cause for Dawat Islami, and that's the mission statement, that I must strive to correct myself and all the people of the world, inshallah azza wa jal. तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है और साथ साथ दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है. अब इसके लिए आप देखिए कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं. Our basic purpose is that we have to rectify ourselves, and with that we have to rectify the people of the whole world, and we have to see what approach we take in order to do that. क्योंकि हमारा भी मशवरा अमूमन तलबा के साथ होता रहता है, तो तलबा को ये सोच, तलबा कराम को ये सोच कि मुझे कुछ करना चाहिए, उस वक्त आती है जब दारुल उलूम का टाइम ख़त्म हो रहा होता है, जब इनके 8 साल पूरे हो रहे होते हैं, 7 साल पूरे हो रहे होते हैं
कि अब ना इनको यहाँ रिहाइश मिलेगी ना इनको यहाँ कुछ और मिलेगा, अब गुड बाय टाटा, अब अल्लाह हाफिज़। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किधर रहूँगा, अब मैं क्या करूँगा। घर वाले कहेंगे कि कमाओ, घर वाले कहेंगे शादी करो, घर वाले कहेंगे ये करो, अम्मी को क्या जवाब दूंगा, अब्बू को क्या जवाब दूंगा, क्या करूं। अम्मी अब्बू को जवाब देने जैसा नहीं। अच्छा लोगों में जाऊंगा फिर क्या करूं, लोग कहेंगे इमामत करो, तो एक तादाद होगी जिसको इमामत करने नहीं आती होगी, एक तादाद होगी जिसको कुरान से ही पढ़ने नहीं आता होगा, एक तादाद होगी जिसको ये नहीं करने आता होगा। तो अच्छा चले मदरसे में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे तदरीस पर रख लिया जाए। तो जब तदरीस का टेस्ट होगा तो पता चला कि इबारत पढ़ने नहीं आती, सर्फ और नहू पर गिरफ्त ही नहीं है, उला तक मैं नहीं पढ़ा सकता। तो मैं ये सब उस वक्त सोच आती है जब हमारा टाइम पूरा हो रहा होता है। तो इससे पहले के टाइम पूरा हो रहा हो वहाँ अभी से सोचे कि हमें करना क्या है। We have to think right now while we are students, because after when our 7 or 8 years are completed, and then we start thinking whether I'm going to be imam or I'll be teacher or I'll be lecturer, and many of us are weak in these departments, and then it becomes a big difficulty, because parents have expectations, you must work and bring some money, now it's time to get married and look after your family. So you need to start thinking about these things while you are a student, that you have to prepare yourself and make yourself strong in some field, that when you graduate you can handle matters with ease and with responsibility. अब हमें कहा जाएगा कि आप पब्लिक में जाएं, अब हम में काम करें, क्या करें पब्लिक में जाकर। पब्लिक हमसे सवाल करते हैं, हमको जवाब देना नहीं आता। We are asked to go and work in the public. How would we work in the public? Public will ask questions and we can't answer. तो ये सिचुएशन को फेस करने से पहले अभी ना सोच लें। Now, to face that embarrassing situation, shouldn't we think about it now and prepare ourselves? अगर मेरी सोच मैं आपको अर्ज करूं, जो मेरी अपनी नाकिस सोच है वो मैं अगर आपको अर्ज करूं, वो आपसे मैं शेयर करता हूं अपनी नाकिस सोच कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि कोई दीन का इस्लाम का काम, ज़ाहिर है आप तालिब इल्म दीन हैं, आप दुनिया बनाने के लिए मदरसे में आए नहीं हैं। जिसको दुनिया बनानी थी वो कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बेबी पढ़ने के लिए चला गया, मगर आप ए फॉर अल्लाह पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। You are students of ilm deen. Your purpose is not to really earn dunya, because those who wanted to earn dunya, they have gone in other fields, in colleges, in universities, where they can earn fat salaries. You have left all that with your choice and you have come to Darul Uloom. Your whole purpose is deen. वो ए फॉर एप्पल पढ़ता है, हमको दारुल उलूम में एप्पल मिलता है। He studies A for apple, and in Darul Uloom we get apple for free. They read apple, we eat apple. अस्तगफिरुल्लाह। इस मस्जिद में आवाज़, मस्जिद में हंसना या कब्र में अंधेरा लाता है। तो वो एप्पल देखता है, अपने एप्पल खाते हैं। वो आर फॉर राइस पढ़ता है, हम आर फॉर राइस खाते हैं। सो हमें यहाँ सब कुछ मिलता है। अल्लाह ताला हमारे उस्तादों को, हमारे बड़ों को सलामत रखे। ये दिन रात एक करके लाते हैं। ये वो शफीक, ये वो माँ बाप से बढ़कर शफकत करने वाले असातिज़ा होते हैं जो अपने लिए कम और अपने तलबा के लिए ज़्यादा कोशिशें करते हैं। These are kind and loving teachers who work very hard and they look after us as students. They don't worry so much about their families as much as they worry about their students. यानी हम अगर अपने मदरसों के इन असातिज़ा और हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे मोहतमीम हैं, जो हमारे हेड हैं, हम इनको पूछें कि भाई आपको कितना खर्चा है, आपका क्या खर्चा है, आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, तो वो कहेंगे कि 10,000 रेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ठीक है 10,000 रेंट ले। नहीं, मुझे 10,000 रेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मुझे 1 लाख रेंट की ज़रूरत है। वाई? क्यों 1 लाख रेंट की ज़रूरत है? भाई 10,000 रेंट आपका खर्चा, अब हमसे 10,000 रेंट ले लो। नहीं, मेरा 10,000 रेंट का खर्चा है और मेरे साथ जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे जो तलबा पढ़ते हैं, इन सब का खर्चा 90,000 रेंट है। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं देना चाहता, मुझे मेरे इन तलबा को लेकर चलना है।
वो This is the अपने लिए thinking. सिर्फ नहीं कर रहे होते. This is the thinking of teachers, the principals who are running the institution. If you talk to them, what is your expenses to run your home? He might not say 10,000 because 10,000 is average, normal to run the house. He might say 100,000. And when you ask him why 100,000, so he'll say 10,000 is for my personal expenses, but I've got 100, 200 students with me and their expense is 90,000. So I have to worry about them as well. So this is how these people think. And this is how they work hard and they look after us as students and give us education. तो ये भी हमसे तवक्को रखते हैं कि हमारे मदरसे से जब हमारे तलबा फारिग होंगे तो ये दुनिया में इस्लाम और दीन की खिदमत करेंगे और मदरसे का नाम भी रोशन करेंगे. And they also have expectations that when you graduate, you will serve Deen and you will take the name of Darul Uloom Pretoria, your institution, at a very high level. यानी आप में से अगर कोई स्टूडेंट निकल कर को बहुत अच्छी स्पीकिंग करे, प्रीचिंग करे, बहुत अच्छा कुरान सुनाए, बहुत अच्छा वो हदीस और तफसीर और शरह बयान करे और उसको अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से एक नाम मिल जाए तो उसके आगे लिखा होगा ना फ्रॉम प्रिटोरिया, दारुल उलूम प्रिटोरिया. तो ये आपके जो असातिज़ा हैं, जो आपके जो बड़े हैं, इनका सीना कितना चौड़ा होगा, इनको कितना अच्छा लगेगा, इनको कितनी खुशी होगी. आप नाम आपका हो रहा है, खुशी इनको हो रही है क्योंकि उस्ताद कभी तालिब इल्म से हसद नहीं करता. Subhanallah. This is a याद beautiful रखिएगा. example that your teacher, your ustad will never be jealous of you. If one of you becomes a great orator or a qari or a writer or an expert in hadith or Quran or tafsir, and people would appreciate you and they would talk a lot about you, and with your name it would be written graduate of Darul Uloom Pretoria, and that's enough for your teachers to be happy. They don't want any money from you, and the more you grow, the bigger name you have, more happy they get. कभी उस्ताद तालिब इल्म से हसद नहीं करता क्योंकि जिसने तस्वीर बनाई है ना, लाख तस्वीर की तारीफ़ की जाए, तारीफ़ तस्वीर की नहीं होती, उसके बनाने वाले की होती है. Teacher is never jealous of you. Remember that when someone makes a picture, and it doesn't matter how much you praise that picture, in reality you are praising the one who has made that picture. मैं अपनी एक नाक़िस सोच आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि हम उम्मत की कोई खिदमत करें, काम करें, हालात बहुत अजीब व गरीब हैं. मजहबी तौर पर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं है मजहबी लोगों को इस दौर में, लेकिन ये हिम्मत है, अल्लाह ताला की रहमत है कि इस दौर में भी हमारे मदारिस आबाद हैं, तलबा पढ़ रहे हैं और मसाजिदों को संभाल रहे हैं. तो हमारा जो सबसे बुनियादी मकसद है, जो ये मेरी एक अपनी नाक़िस सोच है, जो हम अपने हज़ारों स्टूडेंट्स जो जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं, तलबा पढ़ते हैं, इनको डिलीवर करते हैं. और वो सोच ये है कि आपने मस्जिद के मिंबर और मेहराब को संभालना है, क्योंकि इस कौम की इस्लाह, अगर आप उम्मत की सही मायनों में इस्लाह करना चाहते हैं, इस कौम को प्रॉपर वे दिखाना चाहते हैं, तो आपको मिंबर और मेहराब को मजबूत करना पड़ेगा. चाहे जुमा की नमाज हो, चाहे वो ईदैन की नमाज हो, ख्वाह वो पाँचों नमाजें हों, ख्वाह वो जनाजे की नमाज हो, ख्वाह वो बड़ी रातें हों, मुसलमानों ने किसी न किसी वक्त कम या ज़्यादा तादाद में आना मस्जिद में ही है, बैठना मस्जिद में ही है, सुनना मस्जिद में ही है. एक आम मुसलमान भी ये चाहता है कि मेरा इमाम क्या कहता है, हमारा इमाम साहब क्या कहता है, हमारा मौलवी साहब क्या कहता है, हमारा पेश इमाम क्या कहता है. ये अमूमन लैंग्वेज होती है आम लोगों की, जो एक आम आदमी होता है. तो इमाम की आज भी माशरे में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, इनको लोग मानते हैं. दुकान पर जाएं, आइए इमाम साहब आइए, अगर कहीं जाएं, आइए इमाम साहब आइए. बच्चा पैदा हो तो इमाम साहब से दुआएं करवाई जाती हैं, माँ बीमार हो तो इमाम साहब से दुआएं करवाई जाती हैं. अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो पड़ोस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं कहा जाता कि मेरी माँ बीमार है ज़रा दुआ कर दो.
डॉक्टर को दवाई का कहा जाता है, डॉक्टर को दुआ के लिए सब डॉक्टरों को नहीं कहा जाता। अगर किसी को दुआ के लिए कहा जाता है तो वो मस्जिद का इमाम होता है, एक आलिम होता है, एक हाफिज़ होता है, एक कारी होता है, एक मजहबी आदमी होता है। वो अगरचे उसकी तनख्वाह कम हो और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले की तनख्वाह उससे 100 टाइम ज़्यादा हो, लेकिन नमाज पढ़ लेने के बाद वो 100 टाइम ज़्यादा वाला तनख्वाह हाथ चूमेगा तो मेरे इमाम का हाथ चूमेगा, मेरा इमाम उसका हाथ चूमने नहीं जाएगा। I have, thinking in this regard, as His Eminence said, that, and we give that advice to the students of Jamiat in Pakistan as well, that hold fast the musalla, the mimbar, the mihrab. This is the best way to serve deen in this age and time. Whether it's Jummah or 5-time daily namaz or Eidain or big nights or other occasions, sooner or later Muslims, whether in large number or in small numbers, they will still come to the masjid. And people are still connected with the imams. Imams still have respect. And imams are the one who are called at special occasions. When the child is sick, you don't go to the doctor and ask him to make dua. You will take medicine from him, but for dua you will come to an alim. So keep yourself and prepare yourself mentally to take control of musalla, mihrab, mimbar. You will be successful. क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक बहुत दुनिया में ग्लैमराइज हो चुका है, ग्लैमराइज है। पहनने के लिए महंगी घड़ी चाहिए, रखने के लिए एक महंगा कलम चाहिए, पहनने के लिए महंगा चश्मा चाहिए, चलाने के लिए एक अच्छी कार चाहिए, पहनने के लिए एक अच्छा सा जूता चाहिए, एक अच्छे और महंगे कपड़े चाहिए, रहने के लिए बहुत आलीशान मकान चाहिए। ये सब चीज़ें एक ड्रीम है, एक बोसों का ख्वाब है। ये ख्वाब एक मजहबी तालिब इल्म का नहीं होता, ये मजहबी तालिब इल्म का ख्वाब नहीं होता। मजहबी तालिब इल्म का ख्वाब ये होता है कि मैंने किस तरह इल्म दीन सही मायनों में हासिल कर कर आका की उम्मत को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करवाना है। Everything has become glamorized. People want to see that they have this kind of watch or this kind of pen or this kind of branded clothes and etc., and they think about it and they plan towards it. But a student of ilm deen, that is not his style. The student of ilm deen thinks how to prepare myself well and go and serve the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि जो ग्लैमराइज लाइफ की जुस्तजू में रहते हैं ना, उन्होंने ज़ुहद नहीं पढ़ा होता, उन्होंने कनाअत नहीं पढ़ी होती, इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भूखा रहना नहीं पढ़ा होता, इन्होंने सहाबा किराम के पेवंद वाले कपड़े नहीं पड़े हुए होते, इन्होंने इस तरह की इस्लाम की खूबसूरती, ये दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, इन्होंने इस्लाम की खूबसूरती नहीं पढ़ी हुई होती। इन्होंने गैर मुस्लिमों को देखा हुआ होता है और चाहते कम ऐसे पढ़ें। और तालिब इल्म दीन ने कुरान और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, साहबा की सीरत, औलिया किराम की सीरत को पढ़ा हुआ होता है, वो चाहता है कि मैं वैसा बन जाऊं। बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। आज भी मॉडर्न से मॉडर्न फैमिली में भी चले जाएं, मॉडर्न से मॉडर्न फैमिली में चले जाएं, मॉडर्न से मॉडर्न आदमी जिसके घर में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई दाढ़ी वाला नहीं होगा, कोई मतलब पर्दा करने वाली औरत नहीं होगी, जब उसके यहाँ भी किसी बेटे की विलादत होगी, और अगर मुसलमान बेटा है, मुसलमान फैमिली है, और उसके यहाँ भी किसी बच्चे की विलादत होगी, तो हॉस्पिटल का कोई स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढेगा अजान देने के लिए, वो अजान देने के लिए मस्जिद का इमाम या मस्जिद का मौजिन ढूंढेगा कि दाढ़ी वाले को लाओ, वो मेरे बेटे के कान में अजान देगा। वो किसी हॉस्पिटल के कोई बहुत बड़े डॉक्टर को, सर्जन को ढूंढने के लिए या किसी बहुत बड़े सेठ साहब को ढूंढने के लिए नहीं आएगा कि बाहर खड़े हो जाओ, जिसकी सबसे महंगी गाड़ी हो वो सेठ साहब को लाना, वो अजान देगा। बच्चे की विलादत हुई तो अजान देने के लिए मजहबी आदमी चाहिए, और जब बाप का इंतकाल होगा तो जनाजा पढ़ाने के लिए भी मजहबी आदमी चाहिए। हमारी इब्तदा भी मजहबी शख्स है, हमारी इंतहा भी मजहबी शख्स है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो सबके लिए ये लेसन है।
हमें ये देखना ही नहीं है कि इसके पास ये चला गया, इसके पास वो चला गया, जनाब ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। हमारा एक ही मकसद है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। बहुत कम उलमा गुजरे हैं मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत कम उलमा गुजरे हैं जिनको माल व असबाब कसीर अता किया गया, बहुत कम गुजरे हैं, बहुत कम गुजरे हैं, उंगलियों पर गिनती कर ले। साहबा कराम भी इतने ज्यादा नहीं थे जिनके पास माल ज्यादा था, औलिया कराम भी इतने ज्यादा नहीं है जिन पर माल ज्यादा था। इमाम आजम के पास माल था, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास माल था, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास माल था। इनके पास माल व असबाब थे, मगर ये जरूर अर्ज कर दो, इनके पास माल जरूर था मगर इनके दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी, माल की उल्फत नहीं थी, माल की तलब नहीं थी। इनके पास माल था, तो इनके पास माल था। ये कितने मेजॉरिटी उलमा ऑफ उम्मा, मेजॉरिटी, भारी अक्सरियत ये माल व असबाब वाली नहीं थी, ज़ुहद वाली थी, तकवे वाली थी। इनके इर्द गिर्द माल और दौलत वाले जमा हो जाते थे मगर ये माल और दौलत में नहीं चले जाते थे। इनका एक ही मकसद था, एक ही एम था। वो क्या था? मुझे अपनी और, ये हमारी दावत इस्लामी की लैंग्वेज में अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने अपने आप को उम्मत के लिए वफ़ किया हुआ था। 30 माह का मुख्तसर सा टाइम था। कितना? 30 माह, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, 2.5 साल का मुख्तसर सा वक्त। दुनिया में रिवोल्यूशन लाने वाली शख्सियत, इस्लाम के पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सिर्फ 30 माह की मुख्तसर सी मुद्दत में इनकी जिंदगी को एक वर्ड में, एक सेंटेंस में बयान किया जाता है। एक सेंटेंस में इनकी जिंदगी बयान की गई। वो क्या थी? कि इन्होंने खुद को उम्मत के लिए वफ़ कर दिया था, तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार की, सोते कम थे, खाते कम थे, गौर ज़्यादा करते थे, काम ज़्यादा करते थे, रोते ज़्यादा थे, अल्लाह के हुजूर इबादत करते थे और उम्मत के लिए वफ़ थे, माल व असबाब वाले थे, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छे घराना, बहुत अच्छे खाते पीते, बहुत वेल ड्रेस, हर चीज़ अच्छी थी। मगर खिलाफत मिलने के बाद सब चीज़ें एक तरफ चली गई, अब उम्मत के लिए वफ़ हो गए। और 30 माह के मुख्तसर से अरसे में मदनी इनकलाब बर्पा कर दिया कि एक दूसरे से दूसरे कोने तक अमन ही अमन कर दिया। अगर हम भी कुछ करना चाहते, मैंने क्या अर्ज की कि अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो कामयाब लोग कैसे बने, इनकी सीरत को पढ़ें, फिर अपनी नफ्स को मारें और इस रास्ते पर चलें। कामयाबी जहां उनको नसीब हुई है, कामयाबी आपको भी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। I would summarize, it was a long discussion, that His Eminence advised us that we should not run towards the wealth and the money. If you look at the history, you will find that amongst ulama and mashayikh, there were only few who had wealth. Majority of the ulama, they were always hand to mouth, but they served the deen. There were few people, even from Sahaba Ikram, who were rich. Hazur Ghaus-e Azam, Hazrat Sayyidina Imam Azam, Abu Hanifa, and some other great ulama and mashayikh, they had wealth, but majority of the ulama, the scholars, they, from worldly point of view, were always struggling. And this actually helps you to prepare yourself. So we should not be looking at money, because what they kept in front of them was to serve deen, and that was their purpose, and they focus on that. And even if some of these great people had wealth, they were not in wealth. You will find the wealthy people would come around them, but they would not be interested in wealth. And if wealth comes to them, they will leave wealth one side and still serve deen. As beautiful example is given of first mujaddid of this ummah, Hazrat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu.
He became ruler, he became king, he had all the power and everything. But 2.5 years time that he spent as Khalifa, he made himself waqf for the ummah, to serve the ummah. While had all the resources and access to enjoy his life while he was a ruler, but he did not go into that direction. He used all his power, resources, rule and everything to serve the ummah of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. दो चीज़ों से खुद को बचाना है, इंशाल्लाह फिर आप सवालात कीजिएगा। दो चीज़ों से खुद को बचाना है, माल की ख्वाहिश और शोहरत की ख्वाहिश। You have to save yourself from two things. One is the desire to have wealth and desire to have name and fame. जो आपकी किस्मत में मुकद्दर में माल होगा वो मिलकर ही रहेगा, Whatever wealth is in your taqdeer, you will get it. और अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह की तरफ से कोई शोहरत हुई तो मिलकर ही रहेगी। And if it is in your taqdeer that any name and fame you should have from Allah subhanahu wa ta'ala, then you will get it. क्योंकि किसी को अगर ये दोनों चीज़ें मिल भी गई तो उसके वो नेक होने की अलामत नहीं है। Even if someone got these two things, wealth and the name and fame, this is not a sign that he is a pious person. क्योंकि ये उन लोगों के पास भी था जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ है। These two things even those people had with whom Allah subhanahu wa ta'ala was displeased. मगर ईमान और तकवा उसी को मिला जिससे अल्लाह राज़ी है। But a person who gets taqwa and iman is that person with whom Allah is pleased. और इखलास और इल्म दीन उसी को मिलता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। And a person who gets sincerity and ilm deen is that person with whom Allah is pleased. क्योंकि अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसे इल्म दीन अता फरमा देता है। And when Allah subhanahu wa ta'ala desires to do good with someone, He gives him ilm deen. नसीब वाला है वो शख्स जो इल्म दीन सीखने में मसरूफ़ है। Lucky is the person who is busy in learning ilm deen. ये रास्ता है जो जन्नत के रास्ते पे लेके जा रहा है। This is the path which takes you to the path of Jannah. ये रास्ता है जो हदीस के रास्ते पे लेके जा रहा है। This path takes you on the path of hadith. ये रास्ता कामयाबी के रास्ते पे लेके जा रहा है। This path is taking you towards the path of success. क्योंकि इस रास्ते पर चलने की कुरान और हदीस ने हमको दावत दी है। Because Quran and Hadith has invited us to walk on this path. जो कुरान और हदीस की दावत पर लब्बैक कहकर उसके तकाजे पूरे करके चले वो इंशाल्लाह कामयाब और कामयाब ही रहेगा। The one who will say labbaik to the call of Quran and Hadith and full, he will be successful. माल से बचने की और माल की फिक्र होती है ना, माल की फिक्र होती है। बुजुर्गान दीन की उस फिक्रों से बचने की एक अंदाज ये था कि हमारे बुजुर्गान दीन उस शहर में रहते नहीं थे जो महंगा हो, उस शहर में रहते थे जो सस्ता हो। क्योंकि जिस शहर में महंगाई होती है ना वहाँ कमाने की फ़िक्रें ज़्यादा होती हैं, और जिस शहर में सस्ताई होती है ना वहाँ पर कमाने की फ़िक्र कम होती है। इबादत और दीगर इल्म हासिल करने के मामला ज़्यादा होते हैं, और जो शहर महंगा हो ना वहाँ पैसा कमाने की फ़िक्रें ज़्यादा होती हैं, ख़र्चा पूरा करना है। We all have worries and tensions about earnings. Our Buzurgan Deen, they had wonderful philosophies that they would not live in a town, in a city where things are expensive, because in order to afford expensive things you have to work more. So they will go and live in a town or in a city where things are cheap. So you will have to work less and you will have more time for ibadat and for ilm deen and for other things. अब अपनी ज़िंदगियों को और अपने टाइमिंग को हमने सिर्फ़ और सिर्फ सही इल्म दीन हासिल करने में मसरूफ़ कर देना है, सही इल्म दीन। Now we have to make sure that we spend our time and our lives in seeking correct ilm deen. हर वो चीज़ जो आपके टाइम को किल करती है और आपके टाइम को बर्बाद करती है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। Everything that destroys your time or leads you to spend your time in useless things, remove that thing from your life. खा वो मोबाइल फ़ोन हो, Whether it is mobile phone इंटरनेट इस्तेमाल हो, or internet use या फजूल किस्म की फ्रेंडशिप हो, or unnecessary useless friendship, बोलने की ज़्यादा आदत हो,
or the habit of talking a lot, खाने की ज़्यादा आदत हो, the habit of eating a lot. इन सब को निकाल दें. Take all these things out from your system. किताबों से दोस्ती कर लें. Be friend with the books. उस्तादों का अदब और एहतराम बजा लाएं. Respect your teachers. इंशाअल्लाह ताला तरक्की मिलेगी. Inshallah, you will be successful. और जहन बना लें कि हमने फारिग होने के बाद किसी एक मस्जिद की इमामत को संभालना है. And make your mind that after I graduate, I will definitely take imamat of one masjid some way. तो है जो नियत करता हो. Do you make that intention that I will take control of musalla, mimbar and mihrab? कौन? Who makes niyat? You can raise your hands and show His Eminence that you are taking अगर his वाकई advice. नियत बनती है तो. If you're really making the niyat, you shouldn't be lifting your hand if you don't have the niyat. अगर आप मिंबर और मेहराब संभालना चाहते हैं, उसके लिए याद रखिएगा कि आपके सामने उस वक्त बैठेंगे कौन. मेरे सामने इस वक्त स्टूडेंट इल्म दीन सीखने वाले बैठे हुए हैं, दारुल उलूम के मदरसे के तलबा बैठे हुए हैं, तो मेरा मौजू अलग है. लेकिन जब आप मिंबर और मेहराब पर बैठकर बयान करेंगे तो आपके सामने जो लोग बैठे होंगे वो जुम्मा भी बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए आते हैं, उनका मौजू अलग होता है. उनको आप ये नहीं कहेंगे कि माजी ये है, मुजारे ये है, जनाब फ़ाइल ये है, मफ़ऊल ये है, ज़मीर को निकाल के देखो, ज़मीर पोशीदा है. वो बोले किधर पोशीदा है, कहाँ है ज़मीर? ज़मीर तो हमारे अंदर में है, ये कौन सी किताब का ज़मीर है? उसको बेचारे को क्या पता ज़मीर कहाँ होती है, ज़मीर किधर होती है. वो मुब्तदा की बहस क्या जाने. उसको आप नूरुल अनवार की मुश्किल अब्बास में लेके जाएंगे तो कंजुल दक्काइक की मुश्किल अब्बास में लेके उसूल शाशी में मैंने ये पढ़ा है, आप किताब उठा कर देख लो. बोला नहीं देखता, मैं नहीं उठाता किताब. क्यों उठाऊँ मैं किताब? फला किताब उठा कर देख लीजिए. क्यों उठाए वो किताब? मौलाना तुमने पढ़ा, तुम सुनाओ. तो एक होता है ना, वो अवाम है, उसको बताए कि शादी कैसे कर रही हैं, तलाक के मसाइल क्या होते हैं, वो भी आसान करके, हराम और हलाल तिजारत क्या होती है, अखलाकियात क्या. क्योंकि इल्म मुनकसीम है, अकाइद में, इबादात में, मामलात में और अखलाकियात में. बड़े एहसान अंदाज से इन चारों उलूम को तकसीम कर दें. इस कौम को वुज़ू करने नहीं आता, आप उसे मोटी बहस समझा कर क्या करेंगे? अगर आप एक मस्जिद के मिंबर पर बैठ कर कहें कि आज मैं आपको वुज़ू के फ़राइज़ सिखा रहा हूं, आप देखिए कि आप 2 फ़र्ज़ सिखा दीजिए. मिसाल दे रहा हूं, वुज़ू के 4 फ़र्ज़ है ना, आप 2 फ़र्ज़ सिखा दीजिए और कहेंगे कि अगले 2 फ़र्ज़ अगले जुमा सिखाऊंगा, तो वो अगले जुमा 15 मिनट पहले आकर बैठ जाएंगे. अरे इमाम साहब के 2 फ़र्ज़ निकल जाएंगे. वरना उसको पता होगा इमाम साहब ने जाना, इमाम साहब ने एक ही बात करनी है. मैं आज आपको नमाज की 6 शराइत सिखाऊंगा, 6 शराइत की तफसील सिखाऊंगा. आपको मैं नमाज के फ़राइज़ सिखाऊंगा, मैं आपको नमाज के वाजिबात सिखाऊंगा. हज पर जा रहे हैं, वो कहें कि आज मैं आपको हज की 27 वाजिबात सिखाऊंगा. जो हज पे जाते हैं इनको 27 कम से कम वाजिबात सीखने ज़रूरी हैं, वरना इन पर दम वाजिब होने का मसला है. तो अब उनको ये तो पता चले कि हज करना कैसे है, एहराम बांधना कैसे है. इनको एहराम बांधने नहीं आते, इनका सितर खुल जाता है एहराम में. औरतों के मसाले अलग हैं. तो ये टॉपिक्स हैं. इनको गीबत की तारीफ नहीं पता, इनको चुगली की तारीफ नहीं पता, इनको हसद का पता नहीं है, कुछ तकरीबन कुछ नहीं पता होता. ये नापाक कपड़े उठाकर अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, सारे नापाक और पाक कपड़े एक साथ घर में धुल रहे होते हैं. इनको ये नहीं पता होता कि हमारे नापाक कपड़ों को हमने पाक कैसे करना है. जब आप ये टॉपिक्स लेकर कभी किसी मस्जिद की मिंबर और मेहराब पर बैठेंगे ना, आपके मिंबर पर आने से पहले इंशाअल्लाह ताला मुक्तदी नमाजी आपकी मस्जिद में मौजूद होंगे. पिलाइए इनको जो पिलाना, इश्क रसूल के जाम पिलाएं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे के जो आपने उलूम सीखे उनके जाम पिलाएं, तौहीद और रिसालत के जाम पिलाएं. बस इस अंदाज से, हिकमत भरे अंदाज से लेकर चले, इंशाअल्लाह ताला आपके मस्जिद के नमाजी बढ़ जाएंगे. एक बे नमाजी को पकड़ कर मस्जिद में लाएं, मस्जिद के नमाजी बढ़ जाएंगे. जब मस्जिद के नमाजी बढ़ गए ना, आपके सुनने वाले बढ़ गए, आपके सुनने वाले बढ़ गए, मानने वाले बढ़ गए, मानने वाले बढ़ जाएंगे तो अमल करने वाले बढ़ जाएंगे. इसी तरह इंशाअल्लाह माशरे में तब्दीली आ जाएगी.
His Eminence is shaping our minds that when you graduate and you take a masjid as you have made intention, also know and learn while you are a student that we would not go and discuss philosophies and difficult matters with the public. Public don't know many things. Talk to them simple things, things that they don't know. Many people don't know how to make wuzu, how to read namaz properly. They don't know the farais of namaz, etc. At how many places that you do or you do not do sajda sahv becomes wajib. The masail of hajj and etc. So make your mind that when you in your society you take responsibility, talk simple things but basic things, so they are able to practice deen correctly, easily, and thereafter you can teach them the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or any other topic. They'll get close to you, and when they get close to you, they'll listen to you. Your musallis will increase and they'll start loving you, respecting you, and when they respect you, they will practice what you tell them. वो करीब आ जाएंगे आपके. इनको बताइए आका का मेराज कैसे मनाया जाता है, इन्हें बताएं गौसपा की 11वीं कैसे मनाई जाती है, इन्हें बताएं ख्वाजा की छठी कैसे मनाई जाती है, इन्हें बताएं कि शब बारात कैसे मनाई जाती है, फिर इन्हें बताएं कि आका का जश्न विलादत कैसे मनाया जाता है. इन्हें बताएं, एक एक चीज़ बताएं, इनको करीब लाएं, इनको करीब लाएं. इनके जो सोशल मैटर्स हैं उनको भी हमने सॉल्व करना है, इनके जो बिलीव्स मैटर हैं इनको भी हमने सॉल्व करना है, इनकी जो वर्शिपिंग्स मैटर्स हैं वो भी हमने सॉल्व करने हैं. इसीलिए हमने बहुत सारे पहलू पर मुताला करना है, पढ़ना है, मस्जिद में बैठना है. उम्मत की इस्लाह का जज्बा अल्लाह में नसीब फरमाए, इस्लाह उम्मत का दर्द अल्लाह में नसीब फरमाए. आप सब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हैं, कोई किस मुल्क से है, कोई किस मुल्क से है. आप सब अगर अपने अपने ममालिक में जाकर अपने मिंबर और मेहराब को संभालें और जो अर्ज़ की है इस पर थोड़ा सा गौर फरमा लें. जो बात समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, आप कबूल फरमा रहे हैं, इसको अमल करें. इंशाअल्लाह ताला आप और आपके अतराफ़ का हिस्सा रोशन होता चला जाएगा. चराग जलने से कम उसका अतराफ़ का हिस्सा तो रोशन होगा, फिर चराग से चराग, चराग से चराग, चराग से चराग जलेगा, इंशाअल्लाह रोशनी हो जाएगी. So the advice that His Eminence has given, he is hoping that you would keep with you, and if you have understood and if it makes sense, then practice upon it from wherever you have come from or whichever country you have come from. When you go back, you take the musalla, the mimbar and mihrab, serve the community, help them, and inshallah everything would be illuminated around you, with you. आप फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी का नाम आपने सुना होगा, एक तादाद जानते भी होगी. Have you heard the name of founder of Dawat Islami, Hazrat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razvi Ziyai? ही इज़ माई पीरो मुर्शिद. He is the Piro Murshid of His Eminence. तो ये जब दावत इस्लामी, जिनकी अभी आपने तारीफ दावत इस्लामी ये कर रही है, दावत इस्लामी ये कर रही है, 1980 से दावत इस्लामी का काम शुरू हुआ, 1980-81 से, एंड 35 साल में दावत इस्लामी जहाँ है वो नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह. The work of Dawat Islami started in 1980, and today you can see the work of Dawat Islami all over the world. मदनी काफ़िले दावत इस्लामी में मदनी नामात, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो दावत इस्लामी में, किताबें छापने का, किताबें लिखने का, किताबें तैयार करने का दावत इस्लामी के अंदर, मदीनतुल इल्मिया, इसी तरह पब्लिशिंग, मकतबतुल मदीना जो किताबें प्रिंट करती है, दुनिया भर में आम करती है, इसकी बुक्स, इसकी दुकानें, होलसेल एंड रिटेल के, और पूरा एक चैनल रन कर रही है. आपका पूरा IT डिपार्टमेंट चल रहा है. मदरसतुल मदीना ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये चल रहे हैं. मतलब बहुत सारे रिबन, हफ्तावार, वीकली इज्तिमात और मोर और लेस 400 जामियात और तकरीबन मोर और लेस 2000 मदारिस, मदनी मुन्ने मदनी मुनियों के चाइल्ड्स, Madrasas for children about 2000. और 1,10,000 मदनी मुन्ने मदनी मुनिया उसमें पढ़ते हैं. About
110,000 students that are currently studying in the Madrasatul Madina. ये तहरीक जो, या इसके अलावा और बहुत कुछ, ये तहरीक जो पर्सनैलिटी लेकर चली, जिस वक्त वो पर्सनैलिटी वो तहरीक लेकर चली थी ना, उस वक्त वो पर्सनैलिटी एक मस्जिद का इमाम थी, वो मस्जिद के इमाम थे. The personality who started this movement, Amir Ahl Sunnat, when he started this work, at that time he was Imam of a masjid. तो मस्जिद का इमाम अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. If Imam of a masjid wants to do something, he can do a lot. अल्लाह की मदद होनी चाहिए बस, और उसके हबीब का करम होना चाहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. गौसे पाक की नज़र इनायत होनी चाहिए, आला हज़रत का फैज़ान होना चाहिए. मदीना मदीना होता रहेगा इंशाअल्लाह. या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम. या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम. गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी चाहो सलाम में वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद में वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम. कहिए या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम. गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी चाहों को सलाम. सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक. प्रिटोरिया दारुल उलूम प्रिटोरिया दारुल उलूम प्रिटोरिया दारुल उलूम प्रिटोरिया. कितना हसीनो दिल रुबा दारुल उलूम प्रिटोरिया